Yeah, It's not yes, and also okay. thank Okay, you. not right. Yep. All right then. So, how many of you have deployed? Sorry, how many of you have actually built web apps like you are able to run it on the local host but unable to deploy it to showcase it to your friends or let's say your teachers or yeah, obviously in LinkedIn. So, can I get a hands? Like, how many of you are unable to deploy it properly? See, if it's a static website like HTML, CSS, or let's say React, simple front end or serverless functions, then it's fine. But maybe you think like your web app, let's having some AIML implementation. Let's say I will upload my voice and it will tell me that okay, now Avikda is angry or Avikda is in happy mood. This kind of like heavy backend stuffs, and you want to deploy it. You want to access this from your home to the global internet. How many of you actually struggles in this? Can I get a hand? Okay, Shoptik and others. I believe you all have deployed your own websites and portfolios. So can you please send me the link? Okay, okay. I will not ask. All right. So let's understand a bit of networking. I will go it in 20 minutes, let's say. After that, I will show you practically how you can deploy your any app, basically any app, any backend, anything on your website. Okay. Sorry, on your own server. Even you can just turn your laptop into a server. You just have to turn it on for 24 into 7. Okay. Alternatively, you can make your mobile phone into a server. You can make your iPad into a server. You can literally make your Raspberry Pi into a server. Okay. So, how to do? Let me share my screen. Shubham, I believe screen sharing permission is there. You are the co-host. Okay. Okay. Fine. Already given. All right. Thank you. Let me just share. Okay. Are you guys able to see my screen? All right. Um, okay, so can you, uh, is my whiteboard visible? I am scribbling through. Is it there, right? Yes, Dada. All right, so let us start. Okay, first of all, let's see how actually networking works. Okay, so I believe all of you have your routers in your home, right? So router is there, obviously. And let's say you have one mobile phone, two mobile phone, three mobile phones. Now, let's say it is a laptop. Okay, so your laptop is basically connected to the local area network. अच्छा, जो लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि अरे भाई मेरा तो वाईफाई काम नहीं कर रहा, थोड़ा लैन लगा दे यार, उनको ना एक थप्पड़ मारना, क्योंकि वाईफाई भी एक लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब कुछ और मम्बो जम्बो नेटवर्क है, नहीं, वो इथरनेट होता है। इथरनेट और वाईफाई बोथ आर इन लोकल नेट। let's say okay, let's say your router is having some problem, you need to reconfigure it, blah blah blah. So generally which IP address you go? I am not able to access the chat box, so you guys can unmute yourself. Let me just open chat box. Okay, so what is the IP address that we basically go to configure our router? Anyone? How many of you know about this 192.168.0.1? Yeah, yes, Shoptik has answered it correctly. It's 192.168.0.1. It's almost common. So what is this? It's basically the IP address of this device. I will not get into much details because this the basics of networking, and we have to cover the practical stuffs also. So let's say this device assigns this laptop another IP address, that is 192.168.0.3, let's suppose, and this IP address your web app is running on 3000 port. Fine. What is the port number? It's basically, you can think it like a process number. Like in my laptop multiple program is running, जैसे कि meme generator dot py, calculator dot java, okay, xyz dot क्या कहते हैं उसको, JS, लेट्स से जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स से 3000 पे तुम्हारा मीम जनरेटर काम कर रहा है, एक ऐसा वेबसाइट है। ठीक है, आप मान के चलो कि तुम अपने लैपटॉप पे बैठे हो, तुम अपने लैपटॉप पे ही इस
वेब ऐप को ट्राई करना चाहते हो तो तुमको ब्राउजर पे जाके क्या लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट कोलन 3000. अच्छा 3000 तो आई नो दैट 3000 is basically the port number on which the meme generator is running. All right. Now can any one of you tell me that what is basically the local host? Yeah, 192.168.1.1 or anything you can write, but it should be in the class ABC private IP range. I am coming to it in a bit. Okay. It's basically depends on your router configuration and you obviously can change it. So anyone from the audience, that what is basically a local host? You all guys write localhost in the browser, but what is actually this? Local machine running privately, private server. Okay. Yeah, basically localhost is an alias name. What is actually localhost is actually a IP address. Can any one of you tell me that localhost is denoted by which IP address? Hint, it is called loopback IP address. Anyone? See, basically, acha, I know that from anywhere to anywhere, let's say I want to send a telegram, no, not telegram, let's say I want to send a letter to someone. Okay, so if I want to send the letter to someone, I have to write their pin code address, right? So that the postman can reach their location. So let's say it is my home network. This laptop is equipped with this IP address, and let's say this device is equipped with 192.168.0.7, this IP address. Now from this device B, I want to access this web app. So what I have to do on device B, I will not write localhost. I will basically write 192.168.0.3 so that the request can go to this device via this router, or you can call it a gateway basically here. And then I am saying it that you tap into the port 3000 so that you can access this. Okay. Now, when you are onto your own machine, now see, from your mobile, from your iPad, from your smart TV, fridge, anything, if on your own device, acha, first of all, you tell me in yes or no in the chat. You please flood the chat box with yes or no when I will ask that. Suppose you are in the device A and you want to access this website, and you know that your device A address is 192.168.0.3. So can I just write this address from device A only, followed by the port number, to access this web app? Yes or no? Because I am following the syntax, right? I am basically putting the web address and then the port number. So yes or no? Can I get a flood in the chat? 3, 4, 5, 6. Yeah, everyone is basically writing yes, 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 yes. Yeah, absolutely correct. Because the rule is I am not going into the protocol and the endpoint stuffs. I am just basically going into IP address followed by the port number, because through IP address you can locate which computer to reach, and through port number you can connect that which service to reach, like meme generator, Donald Trump meme generator. नहीं कुछ नहीं college meme generator, anything. Okay. Let's see basically okay. Yep. So now the local host is actually, now you might tell that Dada, I have a laptop, but I don't have any router in my home. Now you will tell your papa or mummy that in this session Avigda told us that if we want to build website stuffs, then we need to have a IP address. But without connecting this device to the network, I will not get any IP address that is being assigned by our gateway. So you tell your papa that Avigda said us that to learn a web development, we need to have a router. And in return, what you get? A bamboo. Okay. So don't blame me if you get a bamboo. First, listen to my session that even if you are not connected to your router or your gateway, anything, there's a reserved IP address that is 127.0.0.1. If from any device, whether it's connected to the network or not, it doesn't even matter. If you write from any device 127.0.0.1, it will relay the request on your own device. That is basically looping back. That's why this address is called as loopback address. So now on, if you write 127.0.0.1 followed by the port number, then you can also access your own website on your own device. And this is aliased by
localhost. So basically localhost is a nickname of 127.0.0.1. Am I clear? If I am clear, then flood the chat box with thumbs up, and if I am not clear, flood the chat box with down arrow. Sorry, thumb down. Okay. All right. Okay, I can see a couple of thumbs here, and others I don't know whether they have thumbs or not. I don't know how they play hand cricket in and hit the six. Okay. Chalo. If anyone having any doubt, you can just ask now. Okay. All right, I don't have anyone having any doubt. So let me just continue with the session. Now you know that using localhost, you can access your web app or any service in your local machine. Now let's see how you can expose it to the network. Fine. So let us run through a network diagram. So listen to me very carefully. Now, Achan, as you can see, like my router is in my home, okay? And see, first, when the internet is introduced, in internet, we generally identify each device using a unique address. Can anyone of you tell me that what is the address called? The unique address that is used to identify the devices connected to the network or internet? No, MAC ID is basically a hardware ID. Yeah, that is also unique, like to uniquely identify a network. Yeah, but from the network layer perspective, it's the IP address. Okay. Like if your device is connected like here, first of all, when these things are not there, every device was being assigned with unique IP address, globally unique. Okay, like then every home now on see, like पहले जब इंटरनेट आया था तब इंटरनेट की उतनी डिमांड नहीं थी. लाइक एक घर में एक कंप्यूटर चल जाएगा. तो आईपी का रेंज शुरू होता है तुम्हारा 0000 से और खत्म होता है किस पे 255 255 255 255. Yeah, now many things are restricted obviously, but let us think in general way that if every device is assigned with a unique IP address, we can have maximum 256 to the power 4 unique combinations, right? But now on the internet uses and internet demand is very much, so that this address is unable to accommodate this number of devices. Okay. So what the internet providers actually thought that, so we will not give unique IP addresses to each and every device. Rather, we will give only one IP address that is globally recognized. For now, let's see, this is the global address. Let's say 27.35.29.71. This is the global address, which is the address of our home. Now you tell me that if in our home, our router is connected with 3 devices. Now, can you tell me? See, router is also a device. Device A, it's B, it's C, and it's D. Can any one of you tell me? I will prefer that you unmute yourself and you speak. Otherwise, if you are feeling shy, then you can obviously write in the chat. Okay. So, can any of you tell me that what is the global identity of device C? Which address? Let's say the router is having a local IP address 192.168.0.1. Now remember, router is having one local address, this one, and a global address, this one. Okay. Now the local address means that is used to refer inside our network, and the local address cannot be the global address in any way. This range is reserved. Okay. Let's say 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4. This is basically the IP addresses, that is a local identity or local addresses. Okay. Now, can you tell me what is the global identity of my device C? Anyone in the chat or anyone unmute yourself? A, the global addresses of A. Exactly, because the global address is assigned to the whole network, and your gateway is responsible for managing the outbound and inbound traffics and route it to your devices. That's why this is also called as a router. Okay. Now here comes the interesting part. Okay. Now if you see that
basically there is a content inside the device C. Listen to me very carefully. There is a content in device C that is hosted on port number 3000. Now from the device B, I want to access that content. In 3000 port, basically a meme generator is running. I want to access it inside my network. So is it even required that I interpret this device using its global address? No. Like in your home, uh, do you even refer your brother or sister using Aadhaar card number that my brother will tell me, hey, 520256, sorry, please give me a glass of water? No, never. We will call using our nickname, right? So now you tell in the chat that if I want to access the meme generator of the device C from my device B, which address I will write? Address followed by the port number. I want the address followed by the port number inside the chat. Any one of you can tell in the chat. Yeah, local address colon 3000. Local address of what? Device B or device C? Yep, local address of C followed by the port number. So let's say what will be the actual answer? 192.168.0.3 followed by the port number. That is fine from inside the network. Everyone okay with it? If okay, write down okay. Otherwise, if any problem, you put a question mark. I will again explain it, okay? I believe everyone is putting here okay. If no question mark is there, I will just continue with the topic. All right, so I have received couple of okays. Now the second agenda. The first one is done. We are accessing it inside our network. Now here it comes the interesting part. Let's say I have a mobile phone outside the network. Let's say you are using your mobile data, not using the Wi-Fi, okay? The mobile data. Now you need to access the content of the device C, which is not your network. Let's say this mobile phone is a part of another network, okay? That may be anything. So let's consider this as a external device, okay? Consider it as the external. Now from this external device, I want to access the meme generator service, which is being hosted on this network, this node C on this particular port. So what will be the addressing method? Please write down the chat. Here it comes interesting. What is M? Sorry, Mohit, could you clarify? Mobile, okay. From mobile, I will go to A using the global address and C using local address. Anyone else? Okay. The thing that Mohit written is absolutely correct, but there's a bit of problem. What is the problem? Any one of you can understand. I am putting one hint over there. When I am making any request or I am surfing the internet or any content, I am allowed to write only one IP address followed by only one port number. Now, can any one of you identify what I am trying to refer? Where is the problem lies? I at least expect the answer from any one of you, and I will give him or her a chocolate. शुभम, चॉकलेट देने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके? अच्छा चलो, जो भी ये आंसर देगा उसके टीम को हैक ट्रॉपिका में एंट्री मिल जाएगा. मैंने नहीं, शुभम ने कहा. Repeat the question. Okay, I am repeating the question. The question is basically, if I want to access the content which is hosted on inside this network N, the boundary is basically the N network. Inside this, I have a device C where I have 3000 port for the meme generator. So how I can access this from outside the network? What will be the request path? From mobile to the global address of A and 3000. Okay, do everyone agrees with Mohit that Mohit has written in the chat? I have to type down the global address of A, which is the same
27, 35, 29, 71 followed by the port number. Everyone agrees? Impossible. Exactly, Shoptik, impossible. Why? Shoptik, I will request you that you unmute yourself and you put up with the answer. There is no tunneling, right? Exactly. So There's no tunneling. Also, it is not forwarding any port, right? yes, right. Yes. So where the problem? Yeah, NGDoc, you can use NGDoc or you can use Cloudflare tunneling, everything. Today I will use Cloudflare because NGDocs in the free version sometimes gets like we every time has to change when the service stops, right? The same port is used to be then the one it collide. Exactly. What will happen that if you write down this na 27, 35, 29, 71, this address, this device will send this request using the global address to the primary gateway. Fine. Now, port number 3000. Fine. But how will the router identify that I have to forward this request to which path actually? Is there any indication in this address? Yes or no? If yes, you can tell me, or if no, you can write in the chat that no. Okay. Sham Prasad. Yep. No. Mohit, Bikram, Navanita, Chandrani. Nahi. Chandrani. Okay. No. So, what we can do? Let us see first with the port forwarding approach. Does any one of you know what is NAT forwarding or what is port forwarding? If you know, you can tell me. Okay, see. Actually, this is blocked because of the security. Like from anyone outside your network should not be able to access insider things until or unless you allows them. Okay. So what you can do inside your router, you can open a configuration, and inside this configuration, what you have to write, I am just writing down the table. You please note it. Okay. So first of all, that is your internal IP. You write down the table followed by the internal port, external port, connection protocol. Cool. Everyone written down the table. This is called NAT forwarding table. Write down. Now, what is NAT forwarding table? I will come to the full form later. You can figure it out on your own after you listen to this. Okay. See, things getting interesting from here. So, NAT forwarding. What we can do? So basically, now I need to configure so that if anyone requests this, it should be redirected to my device C. All right. Router send any incoming traffic received on a specific port to device C. Exactly. That will happen, Shayok. Okay, yeah. See, now what I have to do? So you guys tell me that this table will allow my router to relay the traffic to the target. So where I am intended to deliver the traffic, what is the internal IP? Means the local address of this device C. Can any one of you tell me? What is the address? In the chat or yeah, the dot 3. So 192.168.0.3 here. Now I need to forward this request to which port? I need to forward it here on site the 3000 port. Internal port will be 3000. Now comes to the external port. Now it is up to you that if you want to configure that if after the global IP 3000 is written, it will relay inside 3000. Then you put here 3000. But if you want that after the external IP, if you want to write 1234, then it will forward it to 3000. Then you write here 1234.
Generally, it's recommended to give a different one so that it can be hidden from the attackers. Okay. Now the connection protocol. The connection protocol is a interesting thing. Okay. So there is generally two type of protocol that is called TCP and UDP. Generally, can any one of you tell me what is the full form of TCP? It's basically transmission control protocol, and UDP is user datagram protocol. Now, for which kind of scenario, which connection is important? Let me just go through a quick example. Let's say TCP. TCP, first, it's a connection oriented protocol. It checks whether the connection is established or not. So let's say my two hands are two different network nodes, and I want to send my iPhone, that is basically a data, from my left hand to my right hand. So my left hand will talk to the right hand that, hey, right hand, are you able to receive the phone? Yes, yes, I am just able to receive the phone. Okay, can I send you the phone? Yes, yes, send me the phone. Okay, so I am transferring the packet. Yes. So मैंने ट्रांसफर कर दिया. हैंड भी, क्या तुमने फोन को रिसीव कर लिया? Yeah, I have received the phone. Okay, then thank you. Then I am just dropping off the connection. Okay, acknowledged. Thank you. Signing off. Connection is received. So in this method, I am able to verify or ensure that my phone is delivered correctly. If it is not delivered correctly, let's say deliver करने समय ये कहीं पर खो गया, ठीक है? देखो भाई, तुम लोगों को समझने के लिए आईफोन को नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं अपने किडनी को हाथ में लेकर खेल रहा हूँ, समझो बात को. लेट्स से पैकेट कहीं पर गिर गया. हेलो बी, क्या तुमने पैकेट रिसीव कर लिया? नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं. ठीक है, मैं एक और बार सेंड करता हूँ. ये ले, अब मिल गया. ठीक है, मिल गया, ड्रॉप करो. ओके, थैंक यू. ये हो गया टीसीपी. इसमें तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा एकदम गारंटीड. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? डेटा को मैकटा दिए एक्सप्लेन प्लीज. हाँ भाई, मेरे पास मैक है, मैं अभी मीटिंग पे ही हूँ. अगर मैं मैक को ऐसे ड्रॉप करूँ और पैकेट ड्रॉप हो गया ना, तब ये लोग मेरे को सेशन से ड्रॉप कर देंगे. शुभम को बोलो मेरे को एक मैक देने को. स्लो, Shoptik, I cannot get you. What is slow? Yep, TCP is slow. Okay, because it verifies each and every connection after each and every packet delivering. It sends that. Yep. Okay, so now what is UDP? UDP, let's say left hand right hand user datagram protocol. It will not establish any connection. डेटा है, भेज दो. ए भाई ये ले आईफोन, ये ले, मैंने पकड़ लिया. ए भाई ये ले आईफोन, ले, मैंने फेंक दिया. ठीक है, मतलब डेटा, थैंक गॉड. ओके, तो डेटा जाएगा कि नहीं, ये इसकी मतलब प्रायोरिटी नहीं है. इसका प्रायोरिटी क्या है? डेटा को जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा. ये ले डेटा, ये ले भाई, ये ले डेटा, ये ले भाई. अरे भाई थोड़ा रुको ना. नहीं रुकूंगा, तू ले डेटा. अरे भाई पैकेट गिर रहा है, ले डेटा, तू डेटा है, ये ले. तो देखो, इसमें तुम्हारा मतलब स्पीड इज द मैटर. स्पीड है बहुत फास्ट. डेटा जाएगा कि नहीं उसकी मर्जी नहीं है. तो चलो क्विकली गो थ्रू सम एग्जांपल्स. लेट्स से यू आर डाउनलोडिंग सम फाइल फ्रॉम द इंटरनेट. You want to ensure that the file is downloaded properly. So in this scenario, which connection is more preferred, TCP or UDP? TCP. Now let's say you are playing PUBG on your mobile. अरे भाई, तू पहले वेरीफाई कर कि तुम्हारा वो हेडशॉट लगा है कि नहीं. जब तक वेरीफाई करेगा टीसीपी, तब तक हेडशॉट लग जाएगा. ले, उसको चिकन डिनर मिल गया और तुमको घंटा मिल गया, ठेंगा. तो जब तुम ऑनलाइन गेम खेल रहे हो ना, यूडीपी करो, क्योंकि डेटा गया कि नहीं चेक ही मत करो भाई. तुम डेटा है भेज दो. अगर उसका पिंग सही है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. बाद में वो वहीं से रिज्यूम करेगा. चलो, टीसीपी यूडीपी क्लियर. तो मान के चलो कि तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारा टीसीपी होगा या यूडीपी होगा कनेक्शन. Based on your request, now meme generator, I want that the meme delivers correctly. I can use TCP or even I can use UDP. If you are not sure, you just do this once for TCP and do this again, the same details, and for UDP. Okay, you do both the thing. Now it will hit by the network and it will reach to the device properly. This is called NAT forwarding or port forwarding. By using a port number, you are forwarding this request. Now what is NAT forwarding? It's basically translating the network, like from the global network to the local network. That's why it's called NAT, network address translation. समझ में आया?
अगर आया तो यस लिख दो, अगर बहुत अच्छा लगा तो एक हार्ट भी दे देना अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो कुछ भी मत दो। लेकिन अरे यार शोभित, थैंक यू भाई, तुमने तो एक हार्ट दिया। अरे भाई थोड़ा इसको भी दे। भाई एक सेकंड, एक सेकंड। হ্যাঁ ভাই, হ্যালো। তুই আমাকে শুনতে পাচ্ছিস তো? ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, না ফোন ঠিক আছে। আরে না না, সেশন নিচ্ছিলাম, অন্য কিছু, পরে বলছি পরে বলছি। আরে হ্যাঁ ভাই, সেশন নিতে গিয়ে একটু টিসিবিও ঠিক আছে, পরে কথা বলছি, চল। না ফোনটা যায়নি, फोन सही है, ठीक है। ओके। अच्छा ठीक है। तो नेट फॉरवर्डिंग तो हो गया, लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। चलो लेट्स डिस्कस थ्रू द प्रॉब्लम फर्स्ट। नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर। एनीवन, चलो थोड़ा अनम्यूट करके बात करते हैं। क्या इतना चैट पैट करना, चैट तो हमेशा करते रहे व्हाट्सएप में, पिंग 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 पिंग। एनीवन, व्हाट द थिंग्स वी नीड टू कंसीडर? Security is a big concern, right? No, security is not a big concern because you are deliberately opening it. So you will be responsible for your security, whether it's coming from the outer side or not. If it's from the inside also, then it's also a threat. But now this is coming from the outside, and you are aware that your system is secure, so you are opening it. Now, if your meme generator is not secure, then अब तो भाई ये नेटवर्क की मर्जी नहीं, ये तो भाई तुम्हारे ऊपर जाएगा, राइट? यू विल बी द अकाउंटेबल पर्सन, ओके। Yes, right. ओके, देखो, इस अप्रोच में एक ही चीज है जो कि मतलब तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन तुम्हारे इंटरनेट प्रोवाइडर के लिए मजे ही मजे है। वो क्या चीज है? अच्छा, हमने यहाँ पे दो एड्रेसेस की बात की है, एक है लोकल एड्रेस और एक है ग्लोबल एड्रेस। नाउ, जो ये ग्लोबल एड्रेस होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं। लोकल भी होता है, लेकिन लोकल के बारे में बात नहीं करेंगे, ग्लोबल पे चलो। ग्लोबल एड्रेस दो तरीके के, one is static IP, another is dynamic IP. Broadly, okay, there are many connection type like PPPO is there, and static IP, dynamic IP is there, okay. So dynamic IP means your global address can be changed. Today your global address is राम श्याम जदू मधु, उसके बाद लेट्स से कल तुम्हारा ग्लोबल एड्रेस चेंज होके हो जाएगा कोका कोला, स्प्राइट, फ्रूटी, लिम्का, ओके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि और अगर तुम चाहो, अरे भाई तुमने सोचा कि आज तो तुमने सेटअप कर दिया ये चीज, तुमने अपने दोस्तों को बोल दिया कि भाई देखो ये मेरा ग्लोबल एड्रेस है 27 35 29 71, कर दिया। दोस्त को आज आज तुम्हारा दोस्त वेबसाइट एक्सेस कर पा रहा है तुम्हारा लैपटॉप से, बाहर से। लेकिन कल जब तुम्हारा ग्लोबल एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, तब क्या तुम्हारा दोस्त इसको एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि अच्छा मेरा एड्रेस चेंज हो रहा है, हेलो इंटरनेट वाले भैया, जरा मेरे लिए एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देना, तो मतलब ताकि मेरा ग्लोबल एड्रेस चेंज ना हो। तो इंटरनेट वाले भैया बोलेंगे, अरे सर आप कहाँ थे, आप बोलिए चाय कॉफी क्या चाहिए, मैं आपके घर में जाके दे देता हूँ, लेकिन आप एक स्टैटिक आईपी ले लो, मात्र 2,000 रुपया प्रति महीने, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे लिए ये थोड़ा मतलब पॉकेट के लिए थोड़ा और इंटरनेट वाले भैया के लिए अरे नया कस्टमर मिल गया, अब होगा मजा, ठीक है। तो static IP is a bit costly because the ISP means internet service provider have to take care ना, जे इसका IP एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, उसको मतलब एक्स्ट्रा ध्यान लगाना पड़ रहा है, तो भाई वो तो थोड़ा चार्ज करेगा ही ना। हाँ, हालांकि मैंने आज के सेशन के लिए कुछ चार्ज नहीं किया, शुभम को बोला था, लेकिन शुभम ने कुछ दिया नहीं। अब शुभम क्या ही बोलूँ यार। चलो, तो पोर्ट দাদা কিছু फॉरवर्ड, বলছো? हाँ भाई मैंने इनको जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि जब स्टैटिक आईपी हम लोग लेते हैं तो आईएसपी से थोड़ा मतलब आईएसपी हमसे थोड़ा पैसा लेता है, क्योंकि आईएसपी को थोड़ा मतलब अपने टाइम में से थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है ना मॉनिटर करने के लिए। तो मैंने बोला कि आज मैं सेशन ले रहा हूँ तो मेरे को तो नहीं कुछ अब देखो, ऑडियंस है, ऑडियंस के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा, व्हाट्सएप में बोल दूंगा। चलो, तो इसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि मान के चलो कि तुमने अपने पापा को बोला कि भैया ने आज स्टैटिक आईपी सिखाया, तुम जाके बोलो कि
पापा पापा स्टैटिक आईपी चाहिए, इस बार क्या मिलेगा? बैम्बू नहीं, तुम्हारे ऊपर पूरा आईपी एड्रेस फेंक के मारेगा। ठीक है, सॉरी पापा लोग, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, is the session being interesting or is it a monotonous session? Can I get some response in the chat or in voice? Are you liking it or should I change some of the approach? वेरी इंटरेस्टिंग। आज तो भाई लिंक्डइन में पोस्ट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भाई मेरे को बुरा लगेगा। लाइक द एनर्जी। ओके, थैंक यू। चलो अब तो एनर्जी और डबल हो जाएगी क्योंकि अब मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सुन लो, यही लास्ट थ्योरी है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल पे। ओके, सो मैं भूल गया क्या पढ़ाना है। मैं मतलब तैयारी करके नहीं बैठा, जो कि ध्यान मतलब दिमाग में आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या है कि ये आईपी एड्रेस जो कि ग्लोबल है। अरे भाई, चैट बॉक्स में तो तुमने आग लगा दिया स्क्रीन। अच्छा, इज माई स्क्रीन विजिबल ना? प्लीज कंफर्म वंस। Yes, Dada. All right. Okay. So as the IP address is a bit costlier for the static IP, so what we can do, it's called tunneling. Can any one of you know what is tunneling? We will change the approach entirely. You no need to worry about the static IP, ISP, extra पैसा, वो सब भूल जाओ। यहाँ पे हमारा एक कंपनी है जो कि थोड़ा सा दयालु है। हमको कुछ एप्लीकेशन फ्री में डिप्लॉय करने को देते हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं लेते, फ्री टाइम में हमारा चल जाता है। उस भगवान कंपनी का नाम है क्लाउड फ्लेयर। मतलब क्लाउड फ्लेयर पे तुम्हारा इंटरनेट इतना डिपेंडेंट है कि क्लाउड फ्लेयर अगर वो फूंक जाए तो तुम्हारा इंटरनेट भी फूंक गया। इसलिए कुछ दिन पहले हुआ था ना, क्लाउड फ्लेयर मतलब डाउन गया था, लोग सोचते थे कि इंटरनेट डाउन चला गया था, राइट। मान के चलो कि अभी अगर ये जूम जूम मीटिंग अगर क्लाउड फ्लेयर पे चलता है, तो अगर क्लाउड फ्लेयर डाउन चलता है तो ये जूम भी तुम्हारा टाटा बाय बाय। ठीक है, तो let us change the approach. What we can do? So by this time you understood that there is a computer, let's say 3000 पोर्ट पे कुछ भी चल रहा है। ठीक है, I anyway have to reach this computer in order to access the meme generator, right? It is the overall concept. But how would I reach here? Because these mobile devices are in some external network. Let's say external, write down as ext. What I can do, here comes the picture of Cloudflare. Ta-da! Cloudflare. So Cloudflare एक भगवान है जो कि कंपनी है। अब क्या होगा कि Cloudflare, देखो मेरा ये डिवाइस है और ये मेरा सर्वर है जहाँ पे कि मीम जनरेटर है। अब मेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर का एड्रेस क्या है, उसका ग्लोबल एड्रेस क्या है, लोकल एड्रेस क्या है, कुछ नहीं जानना भाई। बस मेरे को क्या करना है, क्लाउड फ्लेयर से एक क्लाउड फ्लेयर वाले बंदे को इस लैपटॉप के अंदर घुसा देना है, क्लाउड फ्लेयर वाले बंदे को। अब ये बंदा है तो तुम्हारे सर्वर लैपटॉप पे, लेकिन ये बंदा एक्चुअली क्लाउड फ्लेयर का आदमी है। ठीक है, तो ये जो क्लाउड फ्लेयर का आदमी है, मेरे को चैट में बोलना यस और नो। ठीक है, एकदम एनर्जाइज करके यस और नो ऐसे बोलना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो क्लाउड फ्लेयर वाला बंदा बैठा है, क्या इसके साथ क्लाउड फ्लेयर का डायरेक्ट कनेक्शन है? यस और नो? यस, इसके साथ क्लाउड फ्लेयर डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि इसको क्लाउड फ्लेयर से पैसा मिलता है। अब क्लाउड फ्लेयर थोड़ा दयालु है। क्लाउड फ्लेयर बोले भैया हम तो बड़े से कंपनी है, हम आपको ना एक काम करेंगे, हम आपको एक एड्रेस दे देंगे। ठीक है, हमने आपको एक एड्रेस दे दिया, आप उस एड्रेस पे हमको चिट्ठी भेजिए, हम आपको वो लैपटॉप की तरफ पहुंचा देंगे। चिट्ठी मतलब रिक्वेस्ट। अब तुम क्या करोगे, देखो क्लाउड फ्लेयर का एक फिक्स्ड एड्रेस है। क्लाउड फ्लेयर बहुत दयालु है, वो लोग एक फिक्स्ड एड्रेस के लिए वो लोग ही पे करते हैं और हमको वो यूज करने देते हैं। भाई क्लाउड फ्लेयर को मेरा प्रणाम। तो तुम अब जो भी रिक्वेस्ट तुमको भेजना है, तुम क्लाउड फ्लेयर को भेज दो। क्लाउड फ्लेयर को बोलो कि भाई मेरे को इस लैपटॉप से इस पोर्ट को एक्सेस करना है। अब तुम्हारा क्लाउड फ्लेयर का जो ऑफिस है, क्लाउड फ्लेयर ऑफिस वाले बोलेंगे अच्छा तुमको रोहित के लैपटॉप से चाहिए ना, देखना दो। रोहित का लैपटॉप में मैंने भेजा था विराट कोहली, सॉरी सॉरी, रोहित के लैपटॉप में मैंने भेजा था शाम को। ठीक है, तो वो शाम को बोलेगा कि श्याम एक काम करो ना,
ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आया ना, ये रिक्वेस्ट मैं तुमको भेज देता हूँ, तो शाम को ये रिक्वेस्ट मिल गया। अब शाम क्या करेगा, शाम ये 3000 को ये भेज देगा। मतलब तुम कम्युनिकेट करोगे क्लाउड प्लेयर को, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लाउड प्लेयर तुम्हारा एक फिक्स्ड एड्रेस है। फाइन, क्लाउड प्लेयर अपने बंदे को इन्फॉर्म करेगा, और अपना बंदा तो लैपटॉप पे ही बैठा हुआ है, तो अपने बंदे को बोल देगा, ठीक है। तो ये जो बंदा क्लाउड प्लेयर ने भेजा था, इसको हम कहेंगे क्लाउड फ्लेयर एजेंट, ओके। और इस क्लाउड फ्लेयर एजेंट का नाम है डी, मतलब सिर्फ डी नहीं, क्लाउड फ्लेयर के बाद डी, क्लाउड फ्लेयर डी, मतलब क्लाउड फ्लेयर्ड। देखो कितना तगड़ा नाम है, क्लाउड फ्लेयर का आदमी क्लाउड फ्लेयर्ड। तो हम इस क्लाउड फ्लेयर्ड को इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर देंगे। एड्रेस की झंझट खत्म, क्लाउड फ्लेयर को बोलो कि मेरे को रोहित के लैपटॉप से कुछ चाहिए। क्लाउड फ्लेयर देखेंगे कि रोहित के लैपटॉप पे श्याम बैठा है, हेलो श्याम, लैपटॉप से उठा मेरे को दे, ये इसको दे देगा, क्लाउड फ्लेयर मेरे को दे देगा, काम खत्म। क्लाउड फ्लेयर थोड़ा अच्छा बंदा है, हमको ये फ्री में करने देता है, ठीक है, कुछ हद तक, और वो हमारे लिए काफी है। तो चलो एक शाउट आउट फॉर क्लाउड फ्लेयर। तो सब लोग चैट में लिख दो क्लाउड फ्लेयर जिंदाबाद। हाँ क्लाउड फ्लेयर बोले भैया, मैंने आपका प्रमोशन कर दिया, ठीक है, वो जरा कट मेरे अकाउंट में भेज देना। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई फॉरगॉट टू म्यूट। अरे हाँ भाई, चलो भाई कल मिलते हैं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो क्लाउड फ्लेयर कुछ नहीं बोलता। ओ सॉरी नहीं, मैं सिंगल हूँ। क्लाउड फ्लेयर जिंदाबाद, चलो क्लाउड फ्लेयर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिक भैया जिंदाबाद, चलो। ओके, तो चलो इस क्लाउड फ्लेयर वाली चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब जस्ट एक छोटा सा चीज, एक डीएनएस करके एक चीज होता है, उसको जस्ट हम समझ लेते हैं। 5 मिनट लूंगा डीएनएस, अगले मतलब 9 से 10 बजे तक हम पूरा एकदम प्रैक्टिकल। चलो, अब व्हाट इज डीएनएस। चलो, तुम लोग फोन में कौन से वेबसाइट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, सब लोग। इट इज हब, समथिंग hub.com, github.com, गिटहब, कुछ और से ज्यादा नहीं, github.com। चलो, तो लेट्स से हमने बोला कि github.com पे चलो। एक्चुअली ये github.com भी तो किसी सर्वर पे होस्टेड है, लैपटॉप नहीं, वो बड़ा सा कंप्यूटर है, सर्वर पे होस्टेड है। अब ये जो github.com है ना, तुम एक चीज सोचो, अगर हमको इसके एड्रेस पे जाना होता, तो हमको एक्चुअली ये जो गिटहब का कंप्यूटर है ना, उसका आईपी एड्रेस हमको याद रखना पड़ता है। गिटहब खोलने के लिए गिटहब का एड्रेस, गूगल खोलने के लिए गूगल का एड्रेस, किसी और हब को खोलने के लिए किसी और हब का। साइंस हब भाई, स्टडी हब, थोड़ा पढ़ लो यार। स्टडी हब पढ़ने के लिए स्टडी हब का एड्रेस, यूट्यूब खोलने के लिए यूट्यूब का आईपी एड्रेस। क्या इतना आईपी एड्रेस मतलब याद रखना संभव है? हाँ, थोड़ा सा संभव है। लाइक मैं करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों का नंबर कभी भी सेव नहीं करता, मैं उनको नंबर, सॉरी हाँ, नंबर से ही याद रखता हूँ, ठीक है। जैसे, नहीं नहीं बोलूंगा। चलो, तो तुम लोग देखो कि हम आईपी एड्रेस भी याद रख सकते थे, या ऐसा नाम याद रख सकते हैं, कौन सा मतलब ज्यादा आसान है याद रखना? इज इट अ नंबर और इज इट अ नेम? कैन आई गेट द वोट्स इन द चैट? नेम नेम नेम, ओके। तो हमको तो नाम याद रखना है, तो हमको क्या चाहिए, हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा एक्सटर्नल डिवाइस है, इससे हम एक्सेस करेंगे। बीच में बैठ जाएगा एक डीएनएस। डीएनएस बेसिकली एक ऑफिस है जिसके अंदर ये पूरा खाता मेंटेन रहता है, कि इसका नाम क्या है और इसका एड्रेस क्या है। मैं बोलूंगा कि डीएनएस बोले भैया मेरे को थोड़ा गिटहब पे ले चलो। अब ये बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारा नाम, तुम गिटहब पे जाना चाहते हो ना, गिटहब तुम्हारे इस एड्रेस पे है। जैसे कोलकाता, सॉरी कोलकाता नहीं, गिटहब तुम्हारा है लेट्स से 17.28 कुछ भी आईपी एड्रेस। तो ये यहाँ से एड्रेस उठाएगा और उसको चल देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एड्रेस को लेता है और एड्रेस पे ही जाता है, बेसिकली हमको तो एड्रेस पे ही जाना है। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है डीएनएस से। चलो, यही चीज को हम थोड़ा क्लाउड फ्लेयर में कर लेते हैं। सो एवरीवन रेडी फॉर द सेशन? चलो, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड in this 1 hour? If you understood well, put down your hands, put up your hands like the thumbs up thing, or if any issue you can just, anyway, मेरे को तो कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो ठीक, 90%, ओके। बाकी 10% अभी समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं तो मेरे को कभी भी लिंक्डइन में लिख देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली इट्स नॉट अ डिटेल सेशन बिकॉज
these things need like almost 5 to 6 classes to complete everything, like what are the private addresses, what are the global addresses, what is DMZ, how to port forward, what is the protocol, network security, everything. Okay, I am just touching the basics so that you can deploy your application right now. Okay, okay, चलो तो हम अब भी क्लाउड फ्लेयर पे चलते हैं। रुको, सबसे पहले मैं क्लाउड फ्लेयर को थोड़ा लॉग इन कर लूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट क्रेडेंशियल है ना, तो मैं थोड़ा लॉग इन कर लूँ, उसके बाद तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर लॉग इन कर लूँ। यप, हमने अपना क्लाउड फ्लेयर लॉग इन कर लिया। जस्ट एक बार देख लेता हूँ कि हमारा सर्वर चल रहा है कि अच्छा, तब तक मेरे को एक चीज़ बताओ कि कौन कौन लिनक्स यूज़र हो, क्योंकि देखो सर्वर में हमारा विंडोज़ यूज़ करने का मतलब नहीं बनता। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो GUI वगैरह नहीं चाहिए, और लिनक्स पता ही है। कौन कौन लिनक्स यूज़ कर पाते हो, एक बार जस्ट मेरे को बोलो। लिनक्स मिंट, ओके, एनीवन आर्च लिनक्स, हैव यूज्ड लिनक्स, ओके, एनीवन एल्स? ओके, चलो, तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग, चलो अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। यूज्ड बट नॉट सर्टन, ओके, नॉट करेंटली। डेस्कटॉप शेयर, ये क्लाइंट का, एक सेकंड रुको, क्लाइंट का कोड थोड़ा, is my screen visible, guys? Just put in the chats. All right, so let's say I want to make this computer a server. So एक चीज मेरे को बोलो कि अगर मेरे को इस कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, तो वो जो क्लाउड फ्लेयर का जो एजेंट है, वो आदमी, उस आदमी को मेरे को कौन से कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्लाउड फ्लेयर के आदमी को कौन से कंप्यूटर पे? इस कंप्यूटर पे, बिकॉज क्लाउड फ्लेयर तो सब नेटवर्क को मेरी तरफ भेजेंगे, राइट? If write down yes, or if anything else you can think, then no, or with the particular. All right, so I need to set up the agent, right? Everyone, okay, don't try to imitate now, okay, just you listen to me or see the thing. You can anytime contact me over LinkedIn or chat, okay? So let's say I will go to cloudflare.com. चलो, मैं cloudflare पे आ गया। अब जस्ट मेरे को ये लॉग इन कर लेना है, ठीक है। मैं क्लाउड फ्लेयर को, देखो तुम अपने जीमेल वगैरह कुछ भी से लॉग इन कर, अच्छा ये मेरे कॉलेज का अकाउंट है, मैं अपने कॉलेज के अकाउंट पे दिखा रहा हूँ, ओके। चलो, तो क्या तुमको ये दिख रहा है UEMCSE AIML ORG? बेसिकली ये मैं जिस डिपार्टमेंट से था उस डिपार्टमेंट का है। एवरीवन एबल टू सी? ऑल राइट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो क्लाउड फ्लेयर का जो एड्रेस है, क्या बोला कि एड्रेस याद रखना उतना आसान नहीं है, और क्लाउड फ्लेयर हमको बोलता है कि हाँ तुमको एक नाम चाहिए होगा। तो बेसिकली हमको एक डोमेन चाहिए, राइट, जो कि क्लाउड फ्लेयर के इस एड्रेस को मेरे लिए रिजॉल्व करेगा। फाइन, चलो, तो इस डोमेन को हमको चाहिए। अब तुम ये डोमेन क्लाउड फ्लेयर से भी खरीद सकते हो, कहीं और से भी खरीद सकते हो। मान के चलो कि तुम अगर क्लाउड फ्लेयर से खरीदोगे, तुम यहाँ पे जाओगे बाई डोमेन पे, ठीक है, तुम कुछ भी, लेट्स से मेरे को चाहिए कि अविक अग्रवाला .xyz, अगर ये अवेलेबल हुआ तो देख लेते हैं। देखो ये अवेलेबल है, हर साल मेरे को $12.30 देना पड़ेगा, तो मैं इसको परचेज कर लूंगा, ठीक है, मेरे क्लाउड फ्लेयर में आ जाएगा ये डोमेन, राइट। और अगर मान के चलो कि तुमने ये डोमेन कहीं और से खरीदा, लेट्स से होस्टिंगर, ठीक है, तो होस्टिंगर पे जाओगे, तुम होस्टिंगर से भी खरीद पाओगे। अब क्लाउड फ्लेयर को कैसे पता चलेगा कि तुमने
डोमेन खरीदा है, कुछ नहीं करना, जस्ट तुमको इस डोमेन ऑप्शन पे आना है और तुम यहाँ पे एक डोमेन को ऐड कर सकते हो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। आई गेस समवन इज इन द वेटिंग रूम, कैन आई एडमिट शुभम? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা। ओके चलो। देखो, मान के चलो कि मैंने ये डोमेन होस्टिंगर से खरीदा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस डोमेन का नाम लिख दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ये मेरे को कुछ स्टेप्स फॉलो करने बोलेगा कि तुम क्लाउड फ्लेयर में तुमको कुछ चीज़ें देता हूँ, तुम उसको जाके होस्टिंगर पे ऐड कर दो ताकि वो डोमेन यहाँ पे आ जाए। तो बेसिकली अगर तुमने एक डोमेन को ऐड कर लिया, वो तुम्हारा क्लाउड फ्लेयर से खरीदो या कहीं और से मैप करके लाओ, तो तुम्हारा ये ऐसे दिखना चाहिए कि ये हाँ मेरा डोमेन आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वो एजेंट चाहिए होगा जिस एजेंट को हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। तो चलो हम कहाँ पर जाएंगे, देखो जीरो ट्रस्ट करके दिखा रहा है, राइट, जीरो ट्रस्ट। तो हम जाएंगे जीरो ट्रस्ट पे और हम यहाँ से जाएंगे नेटवर्क पे। ओके एवरीवन ऑन द नेटवर्क पेज। चलो चलो मैं भी दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कनेक्टर पे। अब हम लोगों को एक टनल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि वो एजेंट होगा, राइट, मतलब जो एजेंट हमारे लिए वो टनलिंग का काम करेगा। चलो क्रिएट अ टनल। अब देखो दो चीज़ है, एक तो है हमारा क्लाउड फ्लेयर जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, और एक नया आया है वार्प कनेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे काम करता है, और एक क्लाउड फ्लेयर हर एक जगह पे काम करता है। तुम अपने विंडोज़ या मैक को भी बना सकते हो सर्वर। तो हमने बोलो इस सेशन में क्या पढ़ाया था, क्लाउड फ्लेयर्ड या वार्प, कौन सा बोला था, किसी को याद है? क्लाउड फ्लेयर्ड। तो चलो हम लोग अभी क्लाउड फ्लेयर्ड पे चलते हैं, सिलेक्ट क्लाउड फ्लेयर्ड। अब तुम इस टनल का कुछ भी एक नाम दे दो, लेट्स से मैं इस टनल का भी नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम आज का तो सेशन का, लेट्स से अविक्स टनल और या कुछ भी डेमो टनल या कुछ भी दे दो ऐसे। मैंने ये दे दिया डेमो टनल, इसको तुम सेव कर लो। कोडीज, हाँ कुछ भी दे सकते हो। अब देखो ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज, अब मेरे को ये एजेंट मिल गया। अब इस एजेंट को मेरे को इंस्टॉल करना है। अब तुम एक चीज बोलो कि मैं एजेंट को कहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। अगर तुम्हारा सिस्टम है विंडोज तो तुम विंडोज पे जाओ, तुमको ये दिखा देगा कि एजेंट को डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो। देखो यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करो। उसके बाद तुम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, मतलब आई गेस तुमको पता है कि व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट, आई बिलीव। जो तुम्हारा टर्मिनल होता है ना विंडोज पे, उसको ओपन करो और ये जो कमांड दिखा रहा है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये बोलेगा कि तुम क्लाउड फ्लेयर को इंस्टॉल करो इस ऑथोराइजेशन की से। ये ऑथोराइजेशन की तुमको क्लाउड फ्लेयर देगा, यही है उस एजेंट का नाम जिस एड्रेस वो एजेंट को कम्युनिकेट करेगा। अरे तुम्हारे एजेंट को तो पता चलना चाहिए ना कि क्लाउड फ्लेयर का कौन सा है, जैसे हर एक एम्प्लॉय को अपना आईडी कार्ड मिलता है, राइट, तो वैसे ही इसका भी एक आईडी कार्ड है, मान के चलो कि ये एजेंट का है। और जब भी तुम इसको इंस्टॉल कर दोगे तुम्हारे लैपटॉप पे ये एजेंट बैठ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मेरा विंडोज नहीं है, तो एक चीज बोलो मेरे को क्या चाहिए होगा, विंडोज, मैक, डेबियन, रेड हैट, कुछ भी बोलो कौन सा। मेरे को चाहिए होगा मैक। अब अगर तुम लोग लिनक्स पे हो, मान के चलो कि तुम्हारा अगर उबंटू, काली लिनक्स या कुछ भी डेबियन बेस्ड मिंट, ये सब लिनक्स है, तो तुम डेबियन पे जाओ। और अगर तुम्हारा रेड हैट वाला लिनक्स है, रेड हैट पे जाओ। डॉकर में करना चाहते हो तो डॉकर पे जाओ। तो मैक्सिमम लोगों का आई गेस डेबियन बेस्ड लिनक्स होगा। तुम इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और या तुम इसको ऐसे भी, इसको तुम डाउनलोड करके ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करो तो ये लिनक्स पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, ये बोल रहा है कि इस कनेक्टर को इंस्टॉल कर लो, जैसे अभी दिखाया था, टर्मिनल पे जाओ, पेस्ट करो और इंस्टॉल कर लो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और उस, हाँ बस इसको करो। और देखो ये बोल रहा है कि और जस्ट रन वंस, हम एक बार नहीं, हम इसको परसिस्टेंटली इंस्टॉल करेंगे कि ताकि हमारा सिस्टम पे वो क्लाउड फ्लेयर वाला एजेंट पूरा का पूरा बैठ जाए। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब भी तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे सिस्टम पे वो एजेंट बैठ जाएगा, फाइन। अब एक चीज बोलो, एजेंट अगर बैठ गया तो
मेरे डिवाइस के साथ क्लाउडफ्लेयर कनेक्शन जुड़ गया, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये एजेंट इंस्टॉल कर? इट फील्स incomplete, can you suggest some documentation for this session? Yeah, obviously I will send you. I will just make a documentation and I will send you. Okay. Who is this user? If you are okay with it, you can just write okay, or you can just follow the Cloudflare documentation also. You have the full documentation here. Okay, you can just search. देखो, in the crash course we cannot go through each of the lines of the documentation, right? You can write like Cloudflare tunnel docs. तुम यहाँ से क्लाउडफ्लेयर टनल का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से पूरा पढ़ के इसको सेटअप कर सकते हो। ऑल राइट, मैं हालांकि ये शेयर कर देता हूँ, रुक जाओ, चैट पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ऑल राइट, सो जब ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब क्लाउडफ्लेयर का जो एजेंट है हमारे सिस्टम में चला गया, तो हमारे सिस्टम के साथ क्लाउडफ्लेयर का सर्वर कनेक्शन जुड़ गया। अब हमको क्या करना है कि हमको इस आदमी को कुछ टास्क असाइन करना है। लाइक अरे भाई तुमको तो बैठा दिया, अब तुम करोगे क्या? वो जो मैंने बोला ना कि जब भी मैं कुछ मतलब क्लाउडफ्लेयर को भेजूंगा, क्लाउडफ्लेयर उसको एजेंट को भेजेगा और एजेंट उसको उस लैपटॉप में भेजेगा। अब तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, समझो। मान के चलो कि हम एक चीज बोलो कि हमारा जो डोमेन है जिसको हमने खरीदा हुआ है, लेट्स से इस डोमेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मतलब अगर मैं इस डोमेन पे जाऊँ तो ये बेसिकली मेरे एजेंट तक पहुंचा देगा। और या तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं इसके पहले एक सब डोमेन भी ऐड करूंगा, जैसे google.com तुम्हारे गूगल पे होम पेज पे जाता है, maps.google.com मैप्स पे जाता है। मान के चलो कि मैं अपने सर्वर को इस डोमेन से नहीं बल्कि ऐसा ovic.uemcacaiml.org ऐसे अगर बोलना हाँ, अच्छा डिस्क्लेमर, मैं कॉलेज का क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सेस अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं अभी थोड़ा रिमोट लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मेरे पास वो सर्वर मतलब एक विंडोज़ लैपटॉप नहीं है, वो थोड़ा खराब हो गया है और कंपनी लैपटॉप है, इसके लिए मैं कॉलेज का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एक्सेस है, मैंने परमिशन ले रखा है, एजुकेशनल परमिशन, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या लिख दिया कि मैं अभी इस सर्वर को इस तरह एक्सेस करूंगा, avic.umcacaiml.org। ओके, तो ये होगा मेरे सर्वर पे घुसने का रास्ता। तुम चाहो तो सब डोमेन नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। या तुम इसको ऐसे करो, server.um ऐसे भी कर सकते हो, मैंने अपना नाम दिया। बात कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम चाहो कि तुम ऐसा करोगे कि मतलब डोमेन का नेम, उसके बाद लेट से माई सर्वर, कुछ ऐसा पाथ अगर चाहो तो तुम दे सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं चाहिए। इसके बाद सर्विस, ये बहुत जरूरी है। चले आओ मेरे स्क्रीन पे, देखो। तो जो मेरा ये क्लाउड फ्लेयर वाला बंदा है, एक चीज बोलो कि ये तो मेरे ही लैपटॉप पे इंस्टॉल है। अगर इस क्लाउड फ्लेयर वाले बंदे को मेरे ही लैपटॉप को एक्सेस करना है, खुद के लैपटॉप को मतलब लूप बैक, तो बोलो इस क्लाउड फ्लेयर वाला बंदा मेरे लैपटॉप के किस आईपी एड्रेस को रीच करेगा? टू एक्सेस इट्स ओन लैपटॉप आई नीड टू हिट व्हिच लैपटॉप, सॉरी व्हिच आईपी एड्रेस? 127.0.0.1, which is referred by the local host. So you can write local host or you can write the IP address. Okay, so I am writing the IP address, anything will work, ये लिख सकते हो, लोकल होस्ट लिख सकते हो, कुछ भी। और इसका टाइप, अब एक चीज देखो, बेसिकली जब भी हम एक लोकल होस्ट पे करते हैं ना, हमको पहले एक प्रोटोकॉल लिखना पड़ता है, जो ये लोकल होस्ट 3000 लिखते हो ना, उसके पहले एक प्रोटोकॉल जाता है। क्या एनीवन कैन टेल मी कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल बिफोर द लोकल होस्ट? एनीवन? http:// HTTPS नहीं, क्योंकि HTTPS जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे उसके बाद, ठीक है। बेसिकली हमको इस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि
ये क्लाउड फ्लेयर वाला आदमी मैं हूँ। मेरे को अगर इस लैपटॉप को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, मैं अपना अपना वीडियो आपको देता हूँ क्योंकि ये लैग कर रहा है बहुत। अच्छा, ओके। तो मेरे को ये जानना है कि ये क्लाउड फ्लेयर वाला आदमी किसको टैप करेगा? http://localhost 3000। मतलब लोकल होस्ट के बाद 3000 नहीं लगूंगा क्योंकि उस पोर्ट को हम लोग बाद में मैप करेंगे, क्योंकि एक सर्वर पे तो मल्टीपल पोर्ट होगा ना। लाइक 3000 पे तुम्हारा मीम जनरेटर चलेगा, 4000 पे वेदर ऐप चलेगा। तो हम लोग अभी इतना बोलेंगे कि अगर हम उस अवीक डॉट कुछ भी डॉट कॉम पे अगर जाए तो ये लोकल होस्ट पे हमको भेज देगा। तो वही चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हमने इस पे, अगर मैंने गया इस सब डोमेन पे तो ये मेरे को भेज देगा। तो ऐसा लिखता हूँ, ओविक सर्वर सब डोमेन, ओविक सर्वर। ओके, ये है मेरा। अगर मैं ओविक सर्वर डॉट इस पे जाऊँ तो ये मेरे HTTP लोकल होस्ट, देखो ये लिख दिया एग्जाम्पल लोकल होस्ट पे इसको मैंने भेज दिया, ठीक है। और क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर लूँगा। फाइन। अब ये जो मैंने बनाया डेमो टन, इसके अंदर मेरे को एक और चीज सेट करना है। क्या? इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं एडिट करूंगा, एडिट। उसके बाद मैं जाऊंगा पब्लिश एप्लीकेशन राउट, जैसे कि मैंने एक बनाया मेरे लोकल होस्ट को एक्सेस करने के लिए। वैसे ही मान के चलो कि तुम्हारा सर्वर अभी USA में चला हुआ है। तुम अपने लिनक्स मशीन को तुम अपने भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर पाओगे रिमोटली। उसको हम लोग कहते हैं SSH। तो SSH बेसिकली फुल फॉर्म इज सिक्योर शेल। तो SSH से भी हम लोग, मतलब SSH के देखो ना, मैं जैसे अपने रिमोट जो सर्वर है उसके लिनक्स मशीन पे लॉग इन करूंगा। देखो ये मेरे सर्वर में लिनक्स मशीन पे लॉग इन करके दे रहा है। ओके, मतलब ये ऐसा होएगा कि मैं अपने लिनक्स मशीन पे ही बैठा हूँ जाकि मैं इसको दूर से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अभी लिनक्स मशीन पे चला गया। तो इसको कहते हैं SSH। तो चलो एक और बना लेते हैं SSH के लिए। लेट्स ओबिक SSH सेम डोमेन पे। तो ओबिक SSH .org पे अगर जाऊँ तो ये मेरा SSH करेगा। और SSH के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो एजेंट को बोलूंगा कि तुम अपने ही डिवाइस पे 22 नंबर पोर्ट पे जाओ, क्योंकि 22 नंबर पोर्ट पे SSH चलता है। जैसे 3000 पोर्ट पे तुमने चलाया था मीम जनरेटर, सिस्टम खुद ब खुद 22 पोर्ट पे SSH चलाता है, ठीक है। तो इसको तुम सेव कर लो। तो अगर मैंने इतना कर दिया और मैंने इस टनल को पहले ही अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया, तो क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि अब तुम मेरे स्क्रीन पे आओ। तो अभी मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा क्लाउड फ्लेयर कंपनी है, तो क्लाउड फ्लेयर मेरे लैपटॉप पे अपने एजेंट को बैठा दिया। अगर मैं जाऊँ ओविक सर्वर डॉट, मेरा डोमेन डॉट कुछ भी, डोमेन डॉट एक्सटेंशन जो UMCCIML.tech, तो ये बेसिकली मेरे लोकल होस्ट पे जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जाऊँ ओविक SSH, उसके बाद डोमेन नेम डॉट एक्सटेंशन, तो ये मेरे लैपटॉप को रिमोट एक्सेस करने देगा। होता है ना कि हम लोग टीम व्यूअर या एनी डेस्क से दोस्त का कंप्यूटर एक्सेस करते हैं, वैसे ही SSH से हम लोग दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। क्या इतना तक तुम श्योर हो गए कि इन दोनों एड्रेसेस से मैं लैपटॉप को रिमोट एक्सेस और लैपटॉप पे लोकल होस्ट पे मैं जा सकता हूँ? इतना श्योर है? If it is clear, write down okay. If anything you may want to ask me, you can ask me right now. All right. I love to see the energy. Right. Okay.
Now it is our job that we like make a server and we access it from the internet, okay, from anywhere in the world. So now I need to access my server. Can any one of you tell me if I want to remote access my laptop where I have just installed the Cloudflare agent, which service I have to choose? Avik server, yeah, Avik SSH. Which subdomain I have to choose? SSH. चलो, तो मैं जो टनल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ना, मैं उसी टनल पे दिखाऊंगा। ये डेमो टनल को इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी इस टनल को इंस्टॉल करके रख दिया था। तो देखो इसमें, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है ना, तो बेसिकली सर्वर डॉट इस पे जाऊँ तो मेरा ये लोकल होस्ट पे जाएगा, और अगर मैं SSH डॉट पे जाऊँ तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा, मेरे रिमोट एक्सेस करने देगा। ठीक है, तो मैं इससे अभी करूँगा क्या, रिमोट एक्सेस। चलो, तो इसके लिए हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या, अगर तुम अपने मैक पे हो या लिनक्स पे हो तो फाइन, अगर विंडोज़ पे हो तो भी फाइन। अगर विंडोज़ पे हो तो एक बार जस्ट चेक कर लेना कि SSH अगर लिखोगे तो ये मतलब कुछ ऐसा दे रहा है कि नहीं। हो सकता है कि विंडोज़ में SSH इंस्टॉल ना हो। क्या एनीवन नोज दैट हाउ टू इंस्टॉल SSH इन योर विंडोज़? मान के चलो कि तुम्हारा ये लिनक्स जो तुमने सर्वर बनाया वो तो कहीं और पे बैठा हुआ है, ठीक है। मान के चलो कि मैंने जो सर्वर बनाया वो अभी लेट्स से हावड़ा में है, और अभी मैं अपने घर पे हूँ। मैं अपने घर के लैपटॉप से अगर SSH करूँगा तो मेरा वो एजेंट मेरे को उस सर्वर वाले लैपटॉप को यूज़ करने देगा। तो मैं अभी मेरे घर के कंप्यूटर पे हूँ। देखो मेरा घर का कंप्यूटर मेरे को ये दिखा रहा है, मैक पे हूँ। अभी मैं अपने उस दूसरे लिनक्स मशीन पे लॉगिन करूँगा SSH के थ्रू। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो क्लाउड फ्लेयर्ड का जो सर्विस है मेरे को अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो क्लाउड फ्लेयर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से ही एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो मेरे को क्लाउड फ्लेयर्ड को अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब तुम कैसे करोगे क्लाउड फ्लेयर को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल? वो जो तुमको दिखाया था ना विंडोज़ पे भी, तो चलो मैं लिखता हूँ कि क्लाउड फ्लेयर को तुम कैसे मैक पे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो मैक पे ये बोलेगा ब्रीव इंस्टॉल क्लाउड फ्लेयर एंड सूडो क्लाउड फ्लेयर सर्विस। इसको इसको कॉपी करो, इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, ब्रीव इंस्टॉल क्लाउड फ्लेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे वो सर्वर वाले लैपटॉप पे तो क्लाउड फ्लेयर का एजेंट बैठा हुआ है ना, तो क्लाउड फ्लेयर को एक्सेस करने के लिए मेरे को अपने लैपटॉप पे भी तो क्लाउड फ्लेयर चाहिए। तो चलो मैंने क्लाउड फ्लेयर को इंस्टॉल कर लिया। अगर तुम्हारा लिनक्स हुआ तो sudo apt इंस्टॉल से कर सकते हो। अगर विंडोज़ हुआ तो वहाँ से क्लाउड फ्लेयर तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या, मैं लिखूंगा, इस फाइल पे मैं एडिट करूंगा। विम से हम लोग किसी भी फाइल को एडिट करते हैं टर्मिनल पे, बेसिक लिनक्स थिंग। आई विल नॉट टच मोर डिटेल्स। बेसिकली विम इज अ टेक्स्ट एडिटर। So I will edit the inside my home folder. I will edit the SSH config. Okay, रुक जाओ एक सेकेंड। SSH कहाँ पे था, जाओ, sudo vim। हाँ, मैं sudo लिखा क्योंकि मतलब हिडन फोल्डर है ना, तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए होगा, सुपर यूजर। तो ये मेरे हिडन फोल्डर SSH में कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देता हूँ। अब देखो ये सब मेरे को लिखना पड़ेगा। मान के चलो कि ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, बस मैं एक चीज लिखूंगा एकदम नीचे आके। मैं एकदम नीचे आके एक नया लिखूंगा। तुम्हारे हिस्सा, तुम्हारे लिए एक फाइल एकदम खाली होगा, क्योंकि मैं और भी सर्वर यूज करता हूँ ना, इसलिए मैं हर एक सर्वर को ऐसे लिख के रखता हूँ। ठीक है,
तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, होस्ट, उसके बाद तुम किस एड्रेस से अपने लैप उस सर्वर वाले को मतलब एक्सेस करना चाहोगे। तो तुम बोलो मेरे केस में वो क्या होगा, ssh.umcseaiml.org। तो चलो मैं इसको लिख दूंगा कि इस पे जाओ, और उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, प्रॉक्सी कमांड। मतलब मैं ये एसएसएच को करूंगा थ्रू मेरा जो क्लाउड फ्लेयर है। उस देखो मैंने क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल किया ना, मैक पे ये इस लोकेशन पे इंस्टॉल होता है, और मैंने बोला कि मैंने जो होस्ट नेम दिया उससे तुम क्लाउड फ्लेयर की मदद से इसको एसएसएच करो, ठीक है। तो बेसिकली दिस कॉन्फ़िगरेशन आई हैव टू राइट, मतलब एसएसएच अगर मैं करूँगा तो ये मेरे क्लाउड फ्लेयर की मदद से उस एजेंट वाले कंप्यूटर को एक्सेस करेगा। तो इसको मैं करूँगा सेव। ओके, अब एंटर, इसको मैं सेव कर दिया। अब एसएसएच कैसे करो, एसएसएच करने का जो सिंटैक्स है, एसएसएच उसके बाद तुम्हारा वो जो लिनक्स कंप्यूटर है जो कि मतलब दूर में है, वो मतलब जिसके अंदर तुमने वो टनल को इंस्टॉल किया, ठीक है। तो उस कंप्यूटर का यूज़र नेम, जैसे हर एक कंप्यूटर का यूज़र नेम होता है ना, तो वैसे ही मेरे उस कंप्यूटर का यूज़र नेम था IDC-admin। तो यूज़र नेम @ तुम जिस वो कंप्यूटर जिस लोकेशन पे है, अभी उस कंप्यूटर का लोकेशन क्या है, इस एड्रेस था ना, तो इसी एड्रेस को मैं लिख दूंगा SSH डॉट, इसको अगर मैं लिख दूँ तो ये मेरे से इस कंप्यूटर का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। देखो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं ये पासवर्ड दे देता हूँ। हालांकि मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं पासवर्ड थोड़ा देख लेता हूँ, मेरे फ़ोन में मैंने सेव करके रखा था। इसका पासवर्ड क्या था, रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा, आई गेस याद आ गया। अच्छा, पासवर्ड लिखने पर ये शेल पे दिखाता नहीं, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई गेस यही वाला, हाँ। देखो लॉगिन हो गया इस अकाउंट से, मतलब अभी मेरा ये टर्मिनल एज इफ मैं अभी अपने सर्वर वाले कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर मैं ये करूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने सर्वर वाले कंप्यूटर पे लॉगिन कर लिया हूँ, यस और नो? यस। मतलब अभी मैं अपने सर्वर को रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। ओके, यस लिख रहे हैं लोग, मतलब समझ में आ गया। आई नो दिस थिंग इज अ बिट टफ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एज इजी एज इट कुड बी। ओके, सो अभी एज इफ मैं अपने सर्वर वाले पीसी में ही बैठा हुआ हूँ। अब मेरे को इस पे, ये एक लिनक्स वाला पीसी है, ठीक है। तो इस पे अब मेरे को एक चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड nginx रिवर्स प्रॉक्सी। ओके, मैं बस नाम लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको रिवर्स प्रॉक्सी। अब व्हाट इज nginx रिवर्स प्रॉक्सी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखो अब मान के चलो कि तुम एक एप्लीकेशन को तुम डिप्लॉय करना चाहते हो तुम्हारे 3000 पोर्ट पे। ओके, अब एक चीज बोलो कि मेरे अगर मैं इसी सर्वर वाले कंप्यूटर से इसको एक्सेस करूंगा तो लोकल होस्ट 3000 से चल जाएगा, लेकिन मैं तो दूर से एक्सेस करूंगा। तो दूर से लोकल होस्ट को एक्सेस करने के लिए मेरे को किस सब डोमेन में जाना पड़ेगा, ये जो पहला वाला था server.umcseaiml.org, राइट। तो मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा कि अगर मैं server.umcseaiml.org पे जाऊँ और उसके बाद अगर मैं स्लैश दे के लिखूँ कि माई ऐप, तो ये लोकल होस्ट पे 3000 पोर्ट को ट्रिगर करेगा। अगर मैं
इसके बाद लिखूँ योर ऐप, तो ये 4000 पोर्ट को ट्रिगर करेगा। तो ये जो ट्रिगरिंग का काम होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग करेंगे एनजिनिक्स के थ्रू, समझे। तो मेरे को अपने सर्वर पे एनजिनिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनजिनिक्स क्या करेगा, मेरे को उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा कि अगर मैं माई ऐप पे जाऊँ स्लैश देके तो ये मेरे 3000 पोर्ट पे पहुंचा देगा। फाइन, चलो तो हम इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो इसको साइड में देता हूँ। हाँ, तो देखो मैं अपने एज इफ मैं अपने लिनक्स वाले कंप्यूटर पे ही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं एनजिनिक्स इंस्टॉल करूंगा। कैसे, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, उबुंटू पे, ये उबुंटू है, sudo apt इंस्टॉल nginx। तुम अगर इसको लिखे एंटर करोगे तो nginx इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब nginx का कॉन्फ़िगरेशन, nginx का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रहता है, तुम हालांकि nginx के डॉक्यूमेंटेशन पे भी देख सकते हो, nginx रिवर्स प्रॉक्सी डॉक्स करके सर्च करके, लेकिन मैं तुमको क्विकली बता देता हूँ। उसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको खोलना पड़ेगा। लेट्स से मैं वीम से खोलूंगा, इस पाथ पे रूट के अंदर etc, उसके बाद nginx, उसके बाद साइट्स एनेबल्ड, उसके बाद तुम अपना कुछ भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम दो, कुछ भी एक नाम दो, जैसे माई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मैंने इसको दिया था AIML सर्वर, क्योंकि कंप्यूटर का है, मेरे कॉलेज का, सॉरी। तो इस लोकेशन के अंदर बेसिकली मेरे को एक ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एंटर करो। अब तुमको इसके अंदर कुछ चीजें लिखना पड़ेगा। देखो जो ये पिंक से है इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये सब मेरा कमेंट लाइन है, ठीक है। तो देखो, जैसे तुम ये लिखना पड़ेगा, मैं ये अपने नोट्स पे भी लिख देता हूँ क्लियरली। सबसे पहले देखो, मैं ये भी लिख देता हूँ, तुम लोग एक नोट्स बना लो। nginx का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा सर्वर, ओके, क्योंकि तुम इसको एज अ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। लिख लो सर्वर। उसके बाद तुमको एक ब्रेस ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा सर्वर का नाम क्या है, सर्वर अंडरस्कोर नेम। सर्वर का मेरा नाम क्या था जिस एड्रेस से पहुंचूंगा, server.umcc.org। तो सर्वर का नाम और उसके बाद तुम्हारा जो सर्वर का जो मतलब सब डोमेन है उसको लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ server.umcc.aiml.org, ओके, सेमिकोलन। अब तुमको जिस पॉइंट को रिवर्स प्रॉक्सी करना पड़ेगा उसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी अभी क्या बोला कि अगर मैं अपने माई ऐप पे जाऊँ, स्लैश माई ऐप पे जाऊँ, तो लेट्स से ये मेरे 9000 पोर्ट को ट्रिगर करेगा, ओके। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर मैं माई ऐप पे जाऊँ तो 9000 पोर्ट पे ट्रिगर करेगा। कैसे, इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन अपने डॉक्यूमेंट से देख सकते हो। हालांकि तुम इसी चीज़ को लिख दो, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे को जो जो चीज़ लिखना पड़ेगा देख लो। सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं अपने डोमेन के बाद कौन से लोकेशन लिखना चाहता हूँ। तो बोलो इन दिस केस व्हाट वी विल हैव टू राइट, क्या बोला मैंने, माई ऐप, राइट। तो लिख दो माई ऐप। उसके बाद अगर मैं माई ऐप पे जाऊँ, उसके बाद तुम रीराइट कर दो इसको, मतलब स्टार से। क्यों, मतलब अगर मैं माई ऐप के बाद कुछ भी लिखता चला जाऊँ, जैसे मेरे सर्वर पे होता है ना माई ऐप के अंदर डाउनलोड्स वगैरह, तो उसके अंदर भी वो डाउनलोड वगैरह लिख देगा, ठीक है। तो एक कमांड से उसको मैंने जस्ट हैंडल कर लिया। और प्रॉक्सी पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
इसके अंदर तुमको लिखना पड़ेगा कि अगर मैं माई ऐप पे जाऊँ तो मेरा एजेंट लोकल होस्ट 127 में, तुम इसको लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट पे कौन से पोर्ट पे जाएगा। लेट्स से मैं इसको 9000 पोर्ट पे ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे को एक और ये ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, और इस अभी इसके लिए एक और क्लोजिंग ब्लॉक, बेसिकली ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। और अगर मैं सोचूं कि मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो मेरे को जस्ट इसी ब्लॉक को रिपीट करते हुए जाना है। जैसे मेरा देखो, अभी मेरे सर्वर पे दिशा AI 8015 पोर्ट पे चल रहा है। उसके बाद जैसे टैप टू की 8001 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो चलो मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, जो कि मेरे माई ऐप को 9000 पोर्ट पे प्रॉक्सी करेगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरे 9000 ब्लॉक है। अब इसका तुम नाम दो कुछ भी, जैसे मैं इसका थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क, अभी थोड़ा स्लो है मेरे कॉलेज में, मतलब कॉलेज था पास आउट। लेट्स से माई ऐप, और इसको मैं बोलूँगा तुम किस एड्रेस पे प्रॉक्सी करो, 9000 पे। हालांकि मैंने ये सब क्यों लिखा तुम डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो, फॉरवर्डिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब क्रैश कोर्स सेशन में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता ना। चलो, तो मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने अभी सेव कर दिया। अब सेव किया तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा ये सिंटैक्स सही है कि नहीं। तो एनजिनिक्स पे टेस्ट कैसे करते हैं, सुडो एनजिनिक्स, उसके बाद एक फ्लैग टी। अगर तुम एनजिनिक्स के बाद एक फ्लैग टी लगाओगे ना, तो मतलब ये तुमको बोल देगा कि तुमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो सही था कि नहीं। जैसे देखो मेरे को बोल दिया कि सिंटैक्स इज ओके, टेस्ट इज सक्सेसफुल। नाउ मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसको अप्लाई करने के लिए एनजिनिक्स सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है sudo systemctl, उसके बाद रीलोड। इस कमांड, ये बेसिकली लिनक्स स्पेसिफिक कमांड है, ठीक है। तो ये सब तुमको आना चाहिए, sudo systemctl reload nginx। ओके, लिख दिया। अब तुम्हें बेसिक बैकएंड ऐप जो कि तुम डिप्लॉय करना चाहते हो वो एक बना लो अपने सर्वर पे। या तो तुम गिटहब पे बना के उसको तुम क्लोन कर सकते हो, या तो खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। तो तुम लोग बोलो मैं क्या करूँ, क्या मैं यहीं पर बना लूँ। बेसिकली इट्स अ लिनक्स शेल, तो आई कैन क्लोन इट फ्रॉम गिटहब ऑल्सो, आई कैन राइट हियर ऑल्सो। सो लेट्स से बना ही लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ माई ऐप करके। MKDIR से हम लिनक्स पे फोल्डर बनाते हैं, चलो उसके अंदर जाते हैं सीडी से। अब तुम लोग बोलो किससे बनाऊं, पाइथन या नोड जेएस। चलो नोड जेएस ही बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन नोड, ठीक है, नोड से बना लेते हैं। तो हमको नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्या लिखता है, npm init y। चलो एक बना लिया। अब चलो एक और बना लेते हैं कि एक सर्वर विम सर्वर डॉट जेएस। ओके, तो एक सर्वर डॉट जेएस लिख लेता हूँ, और बेसिकली मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस। अब ये मत बोलना कि मैं सर्वर बनाना नहीं सिखा रहा भाई, सर्वर तो तुम लोग आ जाए, तुम मतलब बैकएंड का कोड तो तुम लोग ही लिखोगे ना। एक्सप्रेस जेएस हेलो वर्ल्ड, लेट्स से हम हेलो वर्ल्ड को ही लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस का हेलो वर्ल्ड का कोड मैंने ले लिया। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं कौन से पोर्ट पे रन करूंगा, पोर्ट नंबर 9000 को मैंने प्रॉक्सी किया था, तो चलो इसको मैं 9000 पे ही रन कर देता हूँ। 9000 पे रन करूंगा लेट से। तो अभी सेव कर लिया। अब मेरे को एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक्सप्रेस लाइब्रेरी है नोट जेएस का, क्योंकि एक्सप्रेस से बनाया हुआ है। तो npm i एक्सप्रेस। चलो अब अगर इस लिनक्स मशीन पे मैं अपने इस सर्वर को चलाऊं, नोट जेएस में हम कैसे चलाते हैं, नोट स्पेस फाइल नेम डॉट जेएस, राइट। चलो, तो ये मेरे 9000 पोर्ट पे चल रहा है।
तो अब क्या मैं अपने क्लाउड फ्लेयर वाले एड्रेस से इसको एक्सेस कर पाऊंगा? देखते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, सर्वर डॉट umcsaiml.org, एंड बोलो प्रॉक्सी का नाम क्या दिया था हमने? माई ऐप। देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि कैनॉट गेट माई ऐप। शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। लेट्स से हम इस प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं कि क्या है मेरा प्रॉब्लम। देख लेते हैं एक बार। एनजिनिक्स पे हम लोग जाते हैं। ये एनजिनिक्स पे शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था। sudo vim से एक बार वो एनजिनिक्स का पाथ खोलेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसको मैंने गलत लिख दिया था। अगर मैं माई ऐप पे जाऊँ तो इसको रीराइट भी तो माई ऐप नाम से करना पड़ेगा ना। मैंने इसको वो पहला वाला ही कॉपी किया था ना, वही रख दिया था, इसलिए काम नहीं कर रहा। अब तुम इस कॉन्फ़िगरेशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हो। चलो तो इसको एक और बार सेव करते हैं। सेव करके इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अप्लाई हो जाए। अब चलो मैं अपने सर्वर को दोबारा रन करता हूँ। नोट सर्वर डॉट जेएस। चलो अब देखते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड देता है कि नहीं। ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। एक बार ताली बजा देना गाइस, क्योंकि एक सर्वर पे चल रहा है। मतलब अब तुम लोग देखो कि ये चीज़, अगर तुम लोग एक चीज़ देखो, मैं अपने चैट बॉक्स पे देता हूँ। अगर तुम लोग इसको एक्सेस कर पाते हो तो बोलो। आई गेस तुम लोग भी एक्सेस कर पाओगे ओवर द इंटरनेट। इट विल वर्क। एक बार चेक करो और मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। यस, मतलब अब मेरा ये ऐप ग्लोबली काम करेगा, राइट? जैसे मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूँ। मेरे इसी सर्वर पे मेरे कॉलेज का अटेंडेंस सिस्टम होस्टेड है, और मेरा कॉलेज का अटेंडेंस सिस्टम भी ऑब्वियसली मैंने ही बनाया है। तो जैसे देखो, इसको अगर मैं करूँ तो ये जो अटेंडेंस पोर्टल है ये भी मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इसी सर्वर पे बेस्ड है। ये कोई AWS नहीं है। ये भी एक बेसिकली ऑन प्रेमाइसेस सर्वर है। मतलब ये बेसिकली एक कंप्यूटर ही है जो 24/7 चल रहा है, राइट? अब ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई विल नॉट से दैट। अच्छा, ये सर्वर से अगर तुम लॉग आउट करोगे SSH से तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये मैंने अगर क्लोज कर दिया तो हेलो वर्ल्ड नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा हेलो वर्ल्ड। देखो रिफ्रेश करूंगा, ये बोलेगा एरर। देखो बैड गेटवे। तो कैसे हम इसको सर्वर में रनिंग रख सकते हैं वो किसी और सेशन के लिए चलो रख देते हैं। अगर तुम चाहोगे तो तुम मेरे को लिंक्डइन में भेज सकते हो, अगर जानना चाहोगे। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। हमको बेसिकली कुछ स्क्रिप्ट्स लिखना पड़ता है। जैसे तुम जिस एप्लीकेशन को जैसे चलाना चाहोगे, जैसे देखो ये मैं स्क्रीन से दिखा देता हूँ। हालांकि तुम वहाँ पे सिस्टम डी लिख सकते हो। जैसे मैं बोला कि 3000 वाला पोर्ट मेरे इस फाइल में जाके नोड सर्वर डॉट जेएस से चलेगा, ताकि अगर मैं सिस्टम को रिस्टार्ट भी करूँ तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, ठीक है। तो ये सब किसी और सेशन के लिए रखते हैं, क्योंकि ये सब लिनक्स स्पेसिफिक है। ये तुम्हारा सर्वर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आज का जो मेन टारगेट था कि तुम अपने लोकल होस्ट से अपनी ऐप को कैसे सर्वर पे दे सकते हो। और क्लाउड फ्लेयर वगैरह एकदम फ्री है। और तुम लोगों के पास आई बिलीव कॉलेज से तुम लोगों को वो गिटहब स्टूडेंट एजुकेशन मिलता है ना। तो तुम लोगों को वो .me, .tech ये सब डोमेन भी 1 साल के लिए फ्री में मिल जाएगा। डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो तुम लोग आई गेस अपने घर में अपने जो लैपटॉप है ना, विंडोज़ है, लिनक्स है, कोई बात नहीं, उसके अंदर तुम्हें क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करके एक फ्री का डोमेन लेके एक बार सर्वर बनाने का ट्राई करना। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओवर टू यू शुभम। अच्छा, एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन Anyone टॉक। have any doubt? You can ask to Bhaiya. And what you were telling about using phone as a server or something. सी,
your phone is also connected to a network, right? Yes, yes. So what if in your phone you installed some service which is just working like a Cloudflare tunnel, or even you can do like in your phone's network will be relayed to your router, and your router will relate to your another computer which is on the same network. So you can use your phone as a proxy server here. It's up to you like how you want to configure. You Cloudflare इंस्टॉल कर सकते हो फोन पे, टर्मक्स पे कर सकते हो, या तुम अपने फोन को एक सर्वर मतलब बाहर से तुम्हारे नेटवर्क के एक डिवाइस को ये रिक्वेस्ट करेगा जो कि कंप्यूटर होगा, और वो कंप्यूटर तुम्हारे फोन को रिक्वेस्ट करेगा। मतलब इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी, क्योंकि मेरे Right. लिए कोई एक और रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि तुम लोग अटेंडेंस देते समय करते हो ना, दोस्त के लिए प्रॉक्सी दे दिया, तो यही होता है प्रॉक्सी सर्वर। Okay. ओके ओके, एनी मोर डाउट्स? किसी का एनीवन? कोई डाउट है? ओके, देखते हैं चैट बॉक्स में कुछ आया है। इज AWS इक्वल क्लाउडफ्लेयर? सी, AWS के पास अपना खुद का सर्विस हो सकता है, वो लोग क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं कि नहीं वो नहीं बताते, ठीक है। AWS में भी देखो, क्योंकि एक सेकेंड रुक जाओ। नहीं देखो, AWS तुमको अगर EC2 यूज करोगे तो वो तुमको एक आईपी एड्रेस देगा, तुम उस डायरेक्ट आईपी एड्रेस से भी कर सकते हो। अगर तुम चाहोगे तुम एक डोमेन मैप करोगे, तुम क्लाउड फ्लेयर भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब हाँ, अभी तुम अपने लैपटॉप को एज अ AWS EC2 इंस्टेंस दिखा सकते हो इस मेथड से। मोहित, आई बिलीव आई क्लियर योर क्वेश्चन। इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग यू कैन राइट इन द chat. Doesn't Cloudflare also act as a reverse proxy? So why Nginx, why other tool? Yeah, you can also do it using Cloudflare also. Not a issue. Basically, I just here using the Cloudflare tunneling because in this server already the Nginx is installed. That's why I just is show it using the Nginx. You can write anything you want. Like you can use Apache web server. Nowadays, another thing is there apart from Nginx. You can use anything. Okay. Sham, am I able to answer your query? Okay. Now, Vaya, can we explain TCP and UDP once? Yeah, see, TCP is basically a connection oriented protocol, means from one node to another node. It first establishes a connection, it sends the data packet by packet. After every sending, it verifies that whether the data is received or not. It waits for the acknowledgement. If not sent correctly, it will send it again. It will again wait for the acknowledgement. So it's basically slower, but it's reliable that my total data is delivering correctly. But UDP, on the other hand, it is a connectionless protocol. It basically transmits the data. Okay. It doesn't wait for the acknowledgement or approval that my data is correctly reached on the destination. Okay. So it is faster, but reliability is lower. So like where speed is the concern, like online gaming, here you can use UDP. Where data is the concern, like क्या कहते हैं उसको, फाइल डाउनलोड कर रहे हो, जैसे तुम्हारा ईच एंड एवरी बिट शुड कम, फाइल शुड बी इंटीग्रेटेड, इन दिस केस यू कैन यूज TCP. Harsh, am I able to answer your query? Okay. Any more question? Okay, so I just want to have a quick feedback of the session. Like, how do you like it? Acha, obviously, if you didn't like anything, you can directly put in the chat. I will not mind, obviously, because I want to know that. Like, I also want to improve myself, right? My pedagogy, my deliverable skill, this kind of thing. Like, if I go too fast or too complex, this kind of thing. That's why. Okay, you can just write anything you want. I will accept it, and I will also like appreciate it that yes, you are telling me the truth because you also want that my betterment. Okay, so yeah, go on. And if you have any question, you can write in the chat. I will respond. You have any questions, guys? और कोई क्वेश्चन है? No. Okay. Okay, so like, have you enjoyed the session? सब लोग एंजॉय किए हो? कैसा लगा सेशन? ओह This session, keep your कि phone. थैंक यू भाई। हाँ, मेरा फोन सही है। देखो, पढ़ाने के लिए मतलब कुछ कुछ तो बोलना पड़ता है ना। और वो भी मत सोचना कि वो एक्स वाला बात, वही वो मैंने जस्ट मजाक मजाक में बोला था। डोंट वरी,
ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब तुमको इंटरेस्ट देने के लिए वो चाहिए होता है, ठीक है। शुभम, क्या कैन यू एक्सप्लेन टीसीपी यूडीपी तो हो गया। बेस्ट सेशन, इज इट रियली द बेस्ट सेशन टिल नाउ? बोलो। Toptik, is it really? Second, okay, yeah, obviously, Godhead session is amazing, bhaiya, but it seems little difficult because it's first time. Yep, like when I set up the first server, it was also difficult for me. Okay, like yeah, it's absolutely difficult. Like DevOps things is not actually very easy. एकदम मस्त सेशन ओके। हाउ डू यू टर्न योर फोन इनटू अ सर्वर लाइक रूट कस्टम रैम नहीं, कस्टम रोम, ओके। You can like find any services which lets you run Cloudflare or let's say any other tunneling services, or you can even build your own tunneling services. Like anyhow, you have to proxy it through a proxy server or maybe directly using Termux. You can do it. Many software gives you this permission. Okay. See, if I believe, Sham, you are basically installing the custom ROM just because of the root privileges, right? Yeah. Now, if your stock ROM doesn't allow you for the root privilege, yeah, you can go with the custom ROM. Like, yeah, root will obviously give you more control. Because also I used a rooted Android phone, and inside this is installed. Okay, Sham, I believe I am able to clear your query. Ovikda, hello, good evening. Yes, yeah, Meg, yeah. Sorry for the late joining. I was a bit busy in my personal works. Okay. So, how is your iPhone right now? सुना फेंक दिए थे. अरे भाई, आईफोन इज गुड एक्चुअली। मैंने उसको फेंका था, मतलब अपने बिस्तर पे ही फेंका था, लेकिन मतलब वो जाके एकदम दीवार से लग गया, मतलब वो स्क्रिप्ट में नहीं था, इसलिए थोड़ा चेक करना पड़ा। वो आउट All ऑफ, right. लेकिन सही है, नहीं तो भाई चूना लग जाता। एनी मोर क्वेश्चंस लाइक? Okay, I believe they are done with the questions. Over to you, Shubham. And I think first of all, before I mean, Ovikda, I think you can keep your video turned on because we have Okay. something. Okay, so Ovikda ने recently TCS join किया है. Joining बहुत, I mean, few days ago joining हुआ है. 11th I को। think एक applause react तो बनता है सबसे अरे for Ovikda's joining. A lot of best wishes for your job life. थैंक्स भाई, थैंक्स ब्रो, थैंक्स। जिंदा शहीदों के लिस्ट में आ गए. कॉर्पोरेट मजदूर, राइट? All right. So I hope, and Ovikda, formally today we are wrapping up our boot camp for last 7 days by your session. Tomorrow is just a discussion session and the graduation ceremony of the people. Okay. So today we are officially wrapping up this journey of full stack development. Oh, right, And right. Wow. nearly 110 people was, I mean, in our journey with us. Great. Though 280 people joined, but I think we are wrapping up with the biggest free Yes, boot camp of web exactly. dev. And technically, no one from entire India have hosted such a boot camp. It was a, I mean, exclusive opportunity for everyone. And tomorrow we have some surprise discussions with the people. Those who will come, they will just get some really cool things from us. भाई And पीछे as मीटिंग चल रहा है दोनों एक साथ, सोचो और कुछ आने वाला है। अच्छा, अगर एक बहुत बड़ा चीज, आने वाला है कल जो आने तुम वाला है लोग एक तुम्हारे बार लिए. सभी अपना वीडियो ऑन करोगे ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकूं, मतलब सभी का एक बार, प्लीज। हाँ हाँ, होना तो चाहिए. रुक जाओ एक सेकंड जस्ट। Okay, let me sit first. हम भी इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं होता, ऑन कर लो। अरे हाँ, हम ऑन बस हम बस वर्ड है, हम इंट्रो या एक्सट्रो बाद में डिसाइड कर लेते हैं. कर। तो किसका Yeah. सेशन है बाय द वे? हाँ, कल को किसका सेशन है? कल शुभम का है. ओ, कल को मेरा है ना, आप भूल गए। Okay, guys. So video is visible or not? I cannot understand.
Okay. Yeah, Taking the screenshot, just let me know, Shubham. I have something. I'm not taking. I guess Meg is taking, na? Okay. May भाई you दो can लोग दो लोग और वीडियो ऑन कर लो तो ग्रीड भर जाएगा। और दो। अरे वीडियो ऑन करो, क्या ही हो क्योंकि जाएगा। मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा मुझे ये पता नहीं चल रहा। because you are exclusive. मेरा वीडियो दिख रहा है शुभम, मेरा वीडियो दिख रहा है। হ্যাঁ 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 দেখা যাচ্ছে। আমারটা কেন দেখা मैं যাচ্ছে तुम না এবার सभी কেন को দেখি। हैक्ट्रोपी का मैं देखना चाहता हूँ, like how you came up with your ideas. I'm really very excited. See, अच्छा शुभम, मैं मतलब फ्राइडे को टीसीएस से निकल के मतलब रात को आऊंगा आसनसोल में, ठीक है? একদম 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 फिर रविवार को चलो। দেখা হবে। Okay, everyone, put your thumbs up and let's take a screenshot here. चलो ले लो स्क्रीनशॉट। এই মেক स्क्रीनशॉट नहीं ने। डन डन डन। अरे नाइस नाइस, थैंक यू ब्रो, मेरे को जस्ट भेज देना स्क्रीनशॉट। अच्छा हाँ सभी को हाँ। अच्छा लगा सेशन? सभी को एक बार मेरे को अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। अच्छा एक काम करो, जूम का भी फीचर आया है शायद से, वो क्या? इंटेलिजेंट रिकॉर्डिंग वाला, तो ऐसा करो तो लाइक आ जाएगा। अरे नाइस, ये आया है हिट, बहुत अच्छे। अरे क्यों पता नहीं मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरा वाला तो शायद आ रहा है। शायद मैंने अपना वो माई इज आईफोन आल्सो नॉट था ना, कमिंग। तो लाइक देखो आईफोन फेंक दिया था तो मैक बोल रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं लाऊंगा, तू फिर से मेरे को फेंक देगा। नहीं आ रहा भाई, सॉरी। टेस्टिंग फेल्ड ऑन प्रोडक्शन। बट द थिंग इज दैट मेरा वीडियो मेरे को नहीं दिखा। अरे नाइस। हाँ भाई, तेरा थोबड़े भाई हम, कोई तेरा ऊपर तेरे व्यू सबको पे दिखा। आपको एक वहाँ पे सेल्फ व्यू मिलेगा, वहाँ दिखेगा। कहाँ मिलता है? वहाँ व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा एक मेघ भैया सेल्फ মেঘ व्यू আমি मिलेगा। তো আমি তো अरे ছবি তোকে দিয়ে क्या, দেবো। আমি क्या আমি बोल তো दिया? ছবি তোকে দিয়ে अरे দেবো। हाँ हाँ हाँ, मिल गया दिख गया दिख गया दिख गया, चलो ठीक है दिख गया। एक और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर। चलो ले लो, थम्स रेडी? अप एवरीवन। ले लिया, चलो हो गया। चलो मेरे को भी भेज दो, भूल मत जाना भाई तुम, राइट। जब भेजना नहीं नहीं, मतलब अभी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं। स्क्रीनशॉट। तो ओके सो, हाँ भाई इस सब में मेरा स्किल इशू होता रहता है। अच्छा मेघ शुभम, इज हम्म देयर provision like they will get entry to the Hacktropica, like any benefits kind of thing? we can give the answer टुमारो। tomorrow. Okay, 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 We let's can give the टुमारो answer समथिंग, tomorrow. tomorrow something is coming which is, I I am pretty sure beyond your imagination. I am telling you that much. Tomorrow something is coming. We are planning the biggest, I mean, exposure of yourself through this boot camp. wow, great, पीछे से like पीछे से मीन्स आई एम ज्वाइनिंग टू मीन्स अभी एक यहाँ पर एक मीटिंग चल रहा है और एक मेरा बैकएंड फोन में में एक और मीटिंग चल चल रहा रहा है। है। दो मेरा मीटिंग एक चल रहा स्क्रीन है में अभी। जूम, नहीं मेरा एक स्क्रीन में जूम, एक स्क्रीन में गूगल मीट, और अभी तीसरा स्क्रीन स्टार्ट होके उसमें फिर से जोहो मीट आएगा। मैक गिव अवे। हाँ भाई, एनवीडिया स्पॉन्सर कर दे तो जीपीयू भी दे देंगे। अरे भाई, ये मैक गिव अवे का बात सुन के भाई मेरे सर में पेट दर्द होने लगा, मैं निकल लेता हूँ भाई लोग। नहीं मेरा तो देखो एक किडनी बिक चुका था खरीदने में, ठीक है, अब एक किडनी में मैं जी रहा हूँ अभी, तो और Like तो दूसरा नहीं। I can really tell that I met Shubham in the, I guess, Metamorph, right? मेटामॉर्फ। And I meet Meg in Hackspire. Okay, really, these guys are very good and they are putting so much efforts to building a great community. This initiative, I really hats up So to you. you met me first in मीडिया जी InnoFusion मीडिया season जी। 1. Huh? You met me for the first time in InnoFusion Oh season yes, 1. yeah, right, right, right. Yeah, not in person, but yeah, over the call or virtually. Exactly. Yes. No, no, no. In person also. In person also. Yes, I was selected as a participant. In the Fusion 1. In one. In the না finale. কিন্তু দাদা আমরা ইয়েতে প্রচুর Yes. মজা করেছি। Take Janta Party. No, in the finale, I believe you were not there because I remember all the names. Yeah, Tech Janta Party was there, but not make it to the finale. Acha, no, 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 no. There was a debugging session where my project got some bugs. तो हमने एक कनेक्ट किया था। हाँ हाँ, हाँ अब भाई, याद मेरे को अभी आया। भी याद है, मतलब कितना कितना टीम सिलेक्ट किए अच्छा थे। दादा आई मेट यू इन हैक फॉर बंगाल। Oh yes, yeah, I met Shubham in Hack for Bengal, right, right, right. Let's हैक not talk about हैक that. फॉर बंगाल में काम होता है कि हैक फॉर बंगाल में मैं Yeah, अभी हूँ recording तो ऑफ बहुत। कर। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग वेट ऑफ वेट कर दो। वेट 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 दिस विल गो वेट वेट